السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے آل عمران کے آیت نمبر 76 کے آیت سے لیسن کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی آیت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہیں بلا، کیوں نہیں بلا، کیوں نہیں من جو اوفا پورا کرے، اوفا پورا کرے، بعہدہ اپنا اقرار یا عہد، بعہدہ اپنا اقرار یا عہد، واتقا اور پرہیزگاری کرے یا تقوی کرے یا ڈرے، واتقا اور پرہیزگاری کرتا رہے، فإنّا تو بے شک اللہ یحب وسعت رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے، یحب جو ہے پسند کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے، یحب جو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، المتقین یعنی پرہیزگاروں کو، جو بھی یعنی پرہیزگار کرتے ہیں، متقین جو ہے پرہیزگار۔ بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں جو اپنا عہد کو، اپنے یعنی جو اقرار کو پورا کرے اور وہ پرہیزگاری کرتا ہے تو بے شک اللہ جو ہے پسند کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی اللہ جو یہاں پر ایک کلیئر ہے بات کہ جو بھی یعنی اپنے عہد کو پورا کرے، جیسے اس سے پہلے بھی ہے جو کوئی امانت رکھے یا کوئی عہد کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور بے شک کیا کرتا ہے اللہ، دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، یحب جو ہے یعنی دوست رکھنا ہے یا پسند کرتا ہے، ہی لائکس جو پرہیزگار ہیں۔ کیا پرہیزگاری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یعنی ایک تو ہو گیا یہاں پہ واتقا، اس میں بھی کیا ہے پرہیزگاری ہے، اور متقی جو ہے پرہیزگاری کرنے والے کو بتایا۔ اب یہ تقوی جو ہے کیا ہے، یہ تقوی کیا ہے کہ جو اللہ نے جو بتایا وہ احکام سے چلنا۔ ایک تو یہاں پر عہد کی بات ہو رہی ہے، اقرار کی بات ہو رہی ہے، ایک اگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ whoever does an agreement he has to keep that agreement۔ یہ امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے۔ تو اب اس کے اندر یعنی جو بھی یہ پورا کرے گا اپنے عہد کو، پورے اپنی اگریمنٹ کو، اللہ اس کو کیا رکھتا ہے، اس کو اپنی پسند بھی کرتا ہے، اس کو دوست بھی رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو جتنا اگریمنٹ ہمارا جو ہے اللہ کے ساتھ ہوا ہے اسے پورا کریں، اور جو بھی ہم کریں یعنی جو بھی ہمارا جو دنیائی زندگی میں بھی جو بھی اپنا کام ہے، جو ہمارا عہد ہے، اس کو بھی ہم کیا کریں، پورا کریں۔ تو وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے، کہ یہ نہیں کہ ہمیں زبان دے دی اور دل میں سوچ لیا کہ نہیں کرنا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ وعدہ خلافی ہوتی ہے، یعنی عہد کے یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں اقرار، اس کے خلاف جا رہے ہیں، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ تو مین تو اقرار ہے، اور اقرار جو ہے ہر طریقے کا ہو سکتا ہے، اپنی ڈیلی لائف کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی چیز جو کنڈیشنل جو رائٹنگ میں ہوتا ہے ایگریمنٹ وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک جو بھی ہم اقرار کرتے ہیں اس کو یعنی وی ہیو ٹو کیپ دیٹ تھنگ، یعنی وہ اگریمنٹ کو ہم پورا کریں، یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ چلے اگلی آیت لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک الذین جو لوگ یشترونا یعنی خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، یشترونا خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کا اقرار یا اللہ کا عہد، بعہد اللہ اللہ کا اقرار، وایمانکم اور اپنے جو قسمیں ہیں، وایمانہم یعنی ان کی جو قسمیں ہیں، یا اپنی قسمیں جو ہو، ایمانہم ان کے قسمیں، اب ثمنن یعنی قیمت، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، قلیلن تھوڑی، اولئک یہی لوگ لا نہیں خلاقا یعنی حصہ، خلاقا حصہ، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، فی میں الآخرتی آخرت، ولا اور نہ یکلموہم ان سے کلام کرے گا، یکلموہم وہ ان سے کلام کرے گا، اللہ ولا اور نہ ینظرو یعنی نظر کرے گا، ینظرو یعنی نظر کرے گا یا دیکھے گا، ینظرو نظر کرے گا، الیہم ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے، ولہم ان کے لیے عذاب علیم یا علیم دردناک، علیم علیم یا دردناک۔ تو آیت نمبر 77 میں دیکھیں کہ پھر جو بات آ رہی ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یعنی بے شک جو لوگ بیچ ڈالتے ہیں، یعنی یہاں پر جو خرید کے کیسے ہو گیا، یعنی حاصل کرتے ہیں کسی چیز کو، کیا کوئی قیمت یا کوئی چیز حاصل کریں، کس کے بدلے میں، بعہد اللہ وایمانہم یعنی اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑ کر، یعنی اللہ کے عہد کو اور قسموں کو توڑ کر، ثمنا قلیلا یعنی تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اولئک لا خلقان کیا ہے ان کے لیے، انہی کے لیے، ایسے ہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لہم فی الآخرت ان کے لیے کوئی آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم اور نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو اللہ جو ہے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔
تو ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो भी यानी जो लोग यानी थोड़ी सी कीमत के लिए यानी अल्लाह के हक को और अपनी खस्मों को जो तोड़ देते हैं यानी बेच देते हैं या खरीद लेते हैं कोई चीज तमनन कलीलन, थोड़ी सी कीमत के एवज में, थोड़ी सी कीमत के एवज में, तो इनके लिए क्या है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में उनके लिए। और ना ही अल्लाह उनसे बात करेगा और अल्लाह ना ही अल्लाह उनकी तरफ देखेगा क़यामत के दिन, और ना ही अल्लाह उनको पाक करेगा, और ना और उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है, नऊज़ु बिल्लाह। तो इतनी सारी चीजें हैं जो अहद, अहद को पहले तो हमें समझें कि क्या चीज है जो ऐसा अहद, जो यशतरू बिअहदिल्लाह, अल्लाह का अहद क्या है। और हमें पहली बात तो ये समझना है, और जो हमारे खस्मों का भी, जो भी हम खस्में खाते हैं अगर लेते हैं, अगर सीरियस खस्में हैं, यानी कि बेहुदा बेकार की जो मजाक में करते हैं, ये अलग बात होगी, लेकिन कोई पक्का कसम खाया है तो उसे, या कोई अहद किया है तो उसे भी पूरा करना है, कसम खाया उसको भी पूरा करना है। मेन है कि जो अल्लाह का अहद है, हमारा जो अहद है जो हमने क्या कि फर्स्ट अहद क्या है कि हम जो है अल्लाह के सिवा किसी और की हम बंदगी या इबादत नहीं करेंगे। पहला अहद, अगर कोई शिरक कर रहा तो ये अहद को तोड़ रहा है, सही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो ये सब चीजें जो यहाँ पर अल्लाह उनसे ना बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, और उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। ये चीज हमें याद रखना चाहिए, यानी फर्स्ट अहद। उसके बाद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है, जो अल्लाह से अहद किया उन्होंने, ये भी हमारे ऊपर जो है आता है, क्योंकि हम जो है उम्मत मोहम्मदिया है, वी आर मुस्लिम, इस्लाम फॉलो करने वाले, यानी दीन को जो फॉलो कर रहा है, वो जितने भी अहद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जैसे कि हमने नमाज की बात हो गई, कुरान की बात हो गई, हम जो है ज़कात की बात हो गई, और दूसरे चंद जो चीज़ें हैं, जो तमाम जो दीन के अंदर आते हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है एक तरीके का हमारा एग्रीमेंट है, उसे हमें पूरा करना चाहिए। और जो भी ऐसे यानी थोड़ी सी कीमत के लिए, क्या कीमत हो सकती है कि उसको कोई चीज़ यानी पसंद आ गई, जैसे कि अब नमाज का टाइम हो गया, अब एग्जाम्पल एक ले रहे हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए कि कैसे हाथ जो है हम ये कर रहे हैं। एक कि अब नमाज हो रही है, नमाज का टाइम होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, कुछ प्रोग्राम देख रहा है या मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहा है, मतलब ठीक है बाद में जाओ, क्या कर रहा है, ये प्रायोरिटी किसका हो गया, थोड़ी सी जो यानी उसका जो भी वो देख रहा है वीडियो, या जो भी वो देख रहा है प्रोग्राम, या कोई गेम देख रहा है, उसके वो क्या किया, उसने अपनी नमाज को जो है खत्म कर दिया, यानी उसका हद जो है वहां पर वो थोड़ा है, छोटी सी चीज के लिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, हम ले सकते हैं कि जैसे कि रिबा है, यानी सूद, जैसे इंटरेस्ट है, यानी अब क्योंकि अब वो अपने गाड़ी लेना है या घर लेना है, उसको इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अपना घर लेने के लिए क्या करेगा, अहद को तोड़ेगा। क्या का कौन सा अहद, के वो सूद लेना देना, हर तरीके का सूद जो है, इंटरेस्ट जो है वो हराम है। अब वो इस सूद को जो है, क्योंकि उसको घर लेना है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है अपने एग्रीमेंट को जो है, तोड़कर जो है ही इज टेकिंग ऑन लोन, ही इज टेकिंग ए लोन ऑन इंटरेस्ट। अब ये चीज क्या हो गई इसकी, ये वो हक को तोड़ रहा है एक तरीके, हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हाउ वी ब्रेक द जो अग्रीमेंट्स हैं हमारे, तो ऐसे है। या कोई भी जनरल भी हो सकता है, हम और भी ले सकते हैं, बट मेन ये रखना है कि जो हमारा अहद है कि अल्लाह के सिवा हम किसी और को क्या नहीं करेंगे, वो दर्जा और जो है तौहीद पे रहेंगे, अल्लाह के सिवा हम किसी और की बंदगी नहीं करेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी बातें हैं कि जो भी ऐसा करेगा तो अल्लाह क्या करेगा उसे आखिरत में, पहला तो उसे कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में, फिर अल्लाह उससे बात नहीं करेगा, और ना ही अल्लाह उसकी तरफ देखेगा, और ना ही उसको पाक करेगा, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब इतने सारे हैं। अगर कोई मर्जी रख रहा है कि ठीक है मुझे थोड़ी सी जो जिंदगी की जो फायदा मिलने वाला है, चाहे वो इंटरेस्ट का ले लें या कोई और तरीका हो, वो उसके लिए इससे भी ज्यादा यानी पसंदीदा है, तो अलग बात होगी। अगर नहीं है तो चाहिए कि हमें जो है अपने हक को पूरा करें इंशाल्लाह। चलें और एक आयत भी ले लेते हैं इंशाल्लाह। 78 आयत नंबर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन, और बेशक, व इन्ना, और बेशक, व इन्ना, और बेशक, मिनहुम, उनमें से या उनसे, मिनहुम उनसे, लफरीकन, यानी एक फरीक है, एक ग्रोह, यलऊना, यानी वो मरोड़ते हैं, यलऊना मरोड़ते हैं, अलसिनतहुम, यानी अपनी जबानें, अलसिनतहुम अपनी जबानें, टंग्स, जो टंग है, बिल किताबी किताब में, बिल किताबी किताब में, लितहसबूहु ताकि तुम समझो, लितहसबूहु ताकि तुम समझो, मिन से अल किताबी किताब में से, अल किताबी किताब में से, वमा हालांकि नहीं, और नहीं, वमा और नहीं, हुआ वो मिन से अल किताबी किताब में से, अल किताबी किताब, वो यकूलून, और वो कहते हैं, वो यकूलून और वो कहते हैं, हुआ वो मिन से इंदी तरफ, इंदी तरफ, अल्लाह ही अल्लाह के, अल्लाह ही अल्लाह के, वमा हालांकि नहीं, हुआ वो मिन से इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से, इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, वो यकूलून वो बोलते हैं, वो कहते हैं, वो यकूलून वो बोलते हैं, अला पर अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल कदीबा यानी झूठ, अल कदीबा झूठ, वहुम और वो यालमून वो जानते हैं, यालमून वो जानते हैं। तो अब ये देखें जो बात यहाँ पर आ रही है, व इन्ना मिनहुम लफरीक़न यलऊन अलसिनतहुम बिल किताबी,
लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुआ मिनल किताबि, यानी एक ऐसा भी यहूदी और जो अहले किताब में से ऐसा ग्रुप है जो अपनी जुबानों का ऐसा मरोड़ते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि वो जो है किताब में से पढ़ रहे हैं कुछ, ठीक है, बल्कि क्या है, वमा हुआ मिनल किताबि, और जब बल्कि वो किताब में से नहीं है, वो यक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाहि वमा हुआ मिन इंदिल्लाहि, और वो कहते हैं कि वो जो भी उन्होंने पढ़ा है वो अल्लाह की तरफ से, हालांकि वो क्या है, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो यक़ूलूना अलल्लाहि कज़िबा वहुम यालमून, और वो जो कहते हैं अल्लाह के पर वो झूठ है, हालांकि वो जानते हैं, दे नो इट वेरी वेल। तो ये चीज है कि जो यहूदी जो है या अहले किताब ऐसी चीजें जो है अपनी हाथों से घड़कर जो है अपने हाथों से ऐड कर कर किताब में वो ऐसे पढ़ते हैं, इस तरीके से जबान को मरोड़ कर पढ़ते हैं कि ऐसा तो हमें लगे कि वो जो है किताब में से पढ़ रहा है। और वो कहते भी हैं कि ये जो है नऊजुबिल्लाह क्या है कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, और जबकि वो क्या है, वो यक़ूलूना मिन इंदिल्लाह वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, जबकि अल्लाह यहाँ पर क्लियर डिक्लेयर कर दिया है कि वो अल्लाह के पास से नहीं है, और जो वो क्या कहते हैं अल्लाह के ऊपर झूठ कहते हैं और वो जानते भी हैं। यानी ऐसे बहुत सारी चीजें जो है इससे पहले वाली जितने भी कुरान से पहले जितने किताबें आए हैं ये सब जो है उसके अंदर मिलावट हो गई है, खलत मलत कर दिया है, अपने हाथों से लिखकर अल्लाह के ऊपर झूठ उन्होंने बोला है, और उसको पढ़ते भी इस तरीके से हैं कि जैसे कि वो किताब में से हो, जबकि अल्लाह ने यहाँ पर बताया था कि वो किताब में से नहीं है। यानी ऐसे बहुत सारे हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया है उनकी किताबों में, इसीलिए वो किताबें जो हैं हमें यानी ज्यादा हमें यानी उसकी कोई अब बाकी नहीं रह गया, असल जो किताब जो थी जो आई अल्लाह की तरफ से वो किताब में बाकी नहीं रहा है। इसीलिए अल्लाह ने जो है आखिरी किताब कुरान को जो है अपने जिम्मे लिया है, और हमें ज्यादातर जो है अपना जो अगर कहीं रेफरेंस के लिए कुछ ले सकते हैं से उसमें से ले सकते हैं, बेटर कि वी अवॉइड इट अनटिल अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड समथिंग इन द पास्ट, वो जाके हम देख सकते हैं। वरना क्या है उसके अंदर बहुत सारा जो है अपने हाथों से लिखा हुआ है, अपने हाथों से यानी लिख कर जो है बताया गया है कि नऊजुबिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें जो है उनकी किताबों में वो है, लेकिन वो उसको बताते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, नऊजुबिल्लाह। तो ये चीजें हमें जाननी चाहिए, और जो सही चीज है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। आजकल जो सिर्फ ये अहले किताब की बात नहीं रही है, हम अपने भी जो है आसपास देख सकते हैं, जो यानी ईमान वाले सोकल्ड मुसलमान भी जो है लिखकर किताबें जो है उसके अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टोरीज निकाल कर जो है उसके अंदर डालकर वो उसको सही और गलत जो भी खलत मलत कर कर जो है वो किताबें डालकर जो है आदमियों को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर ये गुमराही से हमें बचना है तो क्या करना है हमें, हमें पहले तो कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, और जो सही जो अहादीस हैं, जो सही अहादीस हैं, जो हमारे तरीका कार है, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हैं, वो हदीसों को हमें पढ़ना चाहिए और कुरान को हमें समझना चाहिए, ताकि हम जो ये मिलावट जो खलत मलत जो दूसरे किताबों में डाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान के कुरान जो है इंटैक्ट है। ये हमारे लिए सबसे एक यानी खुशखबरी है हमारे लिए कि हम जो है वापस कुरान में जा सकते हैं, अपने आप को सही कर सकते हैं। वरना जो है किताबों में बहुत सारे ऐसे, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो गुमराह करने वाले हैं, बहुत सारे बिद्दतें हैं, ऐसी ऐसी बिद्दतें हैं, और बहुत सारे तो शिर्क उसके अंदर जो है लिखा हुआ है शिर्क, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें गुमराह कर दे और लेके हमें जहन्नम में लेके जाए, ऐसी बातें उसके अंदर है, नऊजुबिल्लाह। चाहिए कि हम जो है कुरान की तरफ रुजू करें, कुरान की तरफ आए, और जो सही अहदीस हैं, जितने भी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहदीसें हैं उसको हम जाने, उससे हम अपने जो है दीन को, अपने आप को साफ करें। इन तमाम जो भी यानी हाथ से लिखी हुई कहानियों से हम बचकर जो है वापस हम रुजू करें कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ हम रुजू करें इंशाल्लाह। चलें इसी पे आज की जो 78 आयत पे रुकाते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक पढ़ते रहें सीखते रहें इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।